آج رات کے پروگریسی اوڈیسی پروگرام میں دوستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم پریزنٹیشن نمبر 5 پر ہیں، جہاں ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں گا کہ یہ میرے پسندیدہ میں سے ایک ہے۔ جب ہم کھوئے ہوئے ماسٹر ڈاگ کی قسمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے جائیں گے تو اب سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں کیوں کھوئے ہوئے کی قسمت آپ کے پسندیدہ مضامین میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے کہ میں ان لوگوں کا بھی خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں جو آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں ان 15 مختلف زبانوں کے لیے صاف اور آہستہ سے بول رہا ہوں۔ ترجمہ کے طور پر میں بولتا ہوں، یہ صرف ایک حیرت انگیز بات ہے۔ آپ واپس جائیں اور آپ ویب سائٹ پر کلک کریں اور میں پہنچ گیا۔ میں واقعی میں پیغامات کا مطالعہ نہیں کرتا ہوں، میں صرف اپنے آپ کو عربی بولتے ہوئے سنتا ہوں۔ یہ بہت ٹھنڈا ہے اور لہٰذا ہم صرف ان لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں جو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ان دوستوں میں شامل ہو رہے ہیں جو 3 ابن اینڈ ہوپ چینل انٹرنیشنل اور دیگر پر سن رہے ہیں۔ ہمیں یہاں نیو یارک شہر میں واپس آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، جہاں میں بڑا ہوا اور اپنی زیادہ تر تعلیم حاصل کی۔ تو ایک لحاظ سے یہ آج رات گھر آنے کی طرح ہے۔ دوستو، ہم ایک ایسے موضوع سے نمٹنے جا رہے ہیں جو مشکل ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی وقت اب دیکھیں گے کہ یہ حوصلہ افزا ہے، اور یہ عیسائیت کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ بائبل کے آغاز سے بائبل کے اختتام تک بائبل کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ 2 منزلوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ 2 منزلیں بچائے گئے اور کھوئے ہوئے۔ ہم نے مسیح اور شیطان کے بارے میں، اچھی اور بری، روشنی اور تاریکی کے بارے میں بات کی۔ یسوع نے کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں ہو تو تم میرے خلاف ہو۔ 2 راستے ہیں، 2 قسمت ہیں۔ اب فاتح ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا میں ٹھیک ہوں؟ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ ہارنے والی ٹیم پر زیادہ توجہ مرکوز کریں، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو نہ سمجھنا آپ کے انعام اور انعام دینے والے کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ موضوع ہمارے آج رات کے مطالعے میں ایک اہم موضوع ہے۔ جانتے ہیں، میں ہمیشہ ایک حیرت انگیز حقیقت کے ساتھ شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ چند سال پہلے کیرن اور میں حیرت انگیز حقائق بورڈ کے کچھ دوست تھے۔ ہم اٹلی گئے اور ہم نے پومپی شہر کا دورہ کیا۔ یہ میری دوسری بار، پہلی بار تھا میں گیا، میں 16 سال کا تھا۔ میں بحیرہ روم میں ایک بادبانی کشتی پر رہا تھا، اور انہوں نے بہت زیادہ کھدائی کی ہے، جس کے بعد مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اپنے شاید پومپی اور ہرکولین کے شہروں کے بارے میں یہ کہانی سنی ہوگی کہ وہ ماؤنٹ وسوس کی بنیاد پر ایک بڑے آتش فشاں ہیں۔ پس منظر، اور یہاں تک کہ 62 عیسوی سے انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ زمین کبھی کبھار گڑگڑاتی ہے اور ان پر یہ زلزلے آتے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ پر کوئی سرگرمی اور سوجن بڑھ رہی ہے۔ اگلے 17 سال تک نشانیاں بڑھتی رہیں اور بڑھتی رہیں، لیکن ان شہروں کے لوگ اب اس کے بارے میں زیادہ فکر مند نظر نہیں آتے تھے، خاص طور پر پومپی اور ہرکولین۔ پومپی وہ دراصل رومن سلطنت کے لاس ویگاس کی طرح تھے۔ بہت سارے سپاہی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد وہاں جائیں گے، اور یہ ایک انعام کی چیز تھی، اور اس طرح اس 17 سال کے عرصے میں آتش فشاں کے جھٹکے سے کچھ چشمے بھی خشک ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ زلزلے کی بہت سی سرگرمیاں ہیں، لیکن زندگی دن با دن گزرتی گئی۔ لوگ بس اپنی مستی میں ہی مگن تھے کہ لذت کی تلاش میں، اور پھر سارا معاملہ 39 عیسوی میں الفا گیا۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس نے دونوں شہروں کو راکھ اور پومس میں دفن کر دیا، اور کچھ جو ابھی تک نہیں مارے گئے تھے سپر ہیٹڈ گیسوں کے پاروکلسٹک بادل سے مارے گئے جو سونامی کی طرح پہاڑ سے نیچے گرتے ہوئے آئے تھے، اور وہ پہلی بار زندہ جھلس گئے تھے، اسے سانس لیا۔ ٹھیک سال بعد 1748 سال بعد انہوں نے کچھ کھدائی کی، اور انہیں اس ساری راکھ کے نیچے دبے کھنڈرات ملنا شروع ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ راکھ کے ان گاؤں میں دوڑتے رہتے ہیں، اور کسی نے کہا، تم جانتے ہو وہاں غالباً وہاں کوئی چیز تھی، اور اس لیے انہوں نے ان گاؤں میں پلاسٹر آف پیرس انڈیل دیا، اور انہیں یہ بھیانک حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ وہ کھوکھلی جگہیں تھیں جہاں لوگ تھے، ان کے جسم ہڈیوں کے علاوہ گل سڑ چکے تھے، اور وہ چاروں طرف لوگوں کو دیکھ سکتے تھے۔
شہر کے ہزاروں لوگ بہت ہی پوزیشنوں میں مر چکے تھے اور ان کی موت کا آخری دم توڑ دیا تھا کہ اس آفت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ہمیں ایک اور خوفناک تباہی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے۔ ویسے ایک چھوٹا سا سائیڈ نوٹ جو اب یروشلم کے بارے میں سوچنا چاہیں گے، 70 سال قبل مسیح میں ٹائٹس کی فوجوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا تھا۔ میں نے یہ مورخ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فرضی بنیاد پر اس وقت جب انہوں نے خدمت کی تھی بہت سے فوجی جو یروشلم کی تباہی میں ملوث تھے پومپئی میں چھٹیاں گزار سکتے تھے جب شہر کو اچھی طرح سے تباہ کیا گیا تھا۔ بائبل قسم اس کا موازنہ شریروں کی تباہی سے کرتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ کیا دلچسپ ہے، عملی طور پر ہر مذہب دنیا میں یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی انعام ہے، وہ بھی جو تناسخ پر یقین رکھتے ہیں۔ سوچیں کہ اگر آپ بری زندگی گزار رہے ہیں تو آپ واپس آنے والے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مگر مچ اور کون جانتا ہے۔ لیکن آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ایک انعام ہے، اور تقریباً تمام مذاہب سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس طریقے کا انتخاب کرتے ہیں اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے جوابات کہاں سے ملیں گے؟ سڑک پر لوگوں کا انٹرویو کرنا خدا کا کلام حتمی ثالث ہے۔ ہم یہ جاننے جا رہے ہیں کہ بائبل اس موضوع پر کیا کہتی ہے۔ مدد کے موضوع پر بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1، ہم اپنے سوال کے جواب کا طریقہ استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنے اسباق مل گئے ہیں۔ یہ سبق نمبر 5 ہے۔ بائبل میں جن 2 شہروں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ایک طرح سے بدنام ہیں، وہ بدکاروں کی تباہی کی ایک مثال کے طور پر دی گئی ہیں۔ اب دوسری پیٹر 2:6 میں پڑھ سکتے ہیں، اور مت بھولنا کہ آپ وہاں جوابات کال کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ہلکے نیلے رنگ نے اور صدوم اور عمورہ کے شہروں کو راکھ میں تبدیل کر کے خدا نے ان کو تباہی کی سزا دے کر ان کو ایک مثال بنا دیا جو بعد میں بے دین زندگی گزاریں گے۔ تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شریر کا کیا ہونے والا ہے، خدا نے کیا خوب کہا۔ تم نے دیکھا کہ صدوم اور عمورہ کے ساتھ ہوا، وہ جل گئے۔ اور اب یہاں یہود کی آیت میں پڑھ سکتے ہیں، ایک آیت 7، صدوم اور عمورہ کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ابدی آگ کے انتقام کا شکار ہیں۔ ابدی فائر کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے نتائج ابدی ہیں۔ آپ وہاں صرف گوگل ارتھ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں جو دکھاتا ہے ایک ایسا علاقہ جہاں آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ تقریباً سوڈوم اب تھا۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ بائبل اس کی وضاحت کرتی ہے، اگر آپ پیدائش کے باب 19 پر جائیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لاٹ اور ابراہیم کا تعلق تھا۔ لاٹ ابراہیم کا بھتیجا تھا اور ان کے پاس بہت سارے مویشی تھے۔ چرواہے لڑ رہے تھے اور انہیں خاندان میں امن قائم رکھنے کے لیے الگ ہونے کی ضرورت تھی، اور لاٹ نے اپنی نظریں صدوم کی طرف ڈال دیں کیونکہ یہ خدا کے باغ کی طرح سیراب ہوا تھا۔ یہ عدن کے باغ کی طرح تھا، یہ سرسبز تھا، یہ اشنکٹ بندی تھا، وہاں جانوروں کے لیے پودوں کی کثرت تھی۔ اور اس نے سوچا کہ تم جانتے ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ریوڑ واقعی وہاں بڑھیں گے اور چیزیں واقعی خوشحال ہوں گی۔ اور اس کی بیوی نے کہا، تم جانتے ہو کہ انہیں سوڈوم میں واقعی اچھے مال ملے ہیں، اور ویسے بھی کون جانتا ہے وہ وہاں چلے گئے۔ لیکن بائبل آگے کہتی ہے کہ یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا کیونکہ صدوم کے لوگ رب کے سامنے بے حد گنہگار تھے۔ اب کچھ لوگ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ بائبل کہتی ہے کہ خدا نے صدوم کو سزا دینے سے پہلے اور عمورہ خدا نے صدوم اور عمورہ کو بچایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے عظیم فیصلے کے دن آنے سے پہلے شمال سے 5 بادشاہوں کی قیادت چیٹل یومر نامی ایک اشوری نے کی؟ ان کا ایک اتحاد تھا، وہ نیچے اترے اور انہوں نے صدوم اور عمورہ کے بادشاہوں اور میدان کے دیگر 4 شہروں پر حملہ کیا اور انہیں فتح کیا، اور وہ انہیں تمام راستے اسیر کر کے لے گئے، اور لوط اور اس کا خاندان تباہی میں لے گئے۔ یہ ایک فیصلہ تھا کہ ان کی توجہ ان کو توبہ کی طرف مبذول کرائی جائے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ سب کو نجات ملے۔ اور ابراہیم کچھ دوسرے طاقتور شیخوں کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور وہ گئے اور انہوں نے انہیں نجات دلائی۔ انہوں نے اپنے سپاہی حاصل کیے۔ اب جانتے ہیں ابراہیم کے پاس 300 سے زیادہ 300 آدمیوں کی فوج تھی، اور انہوں نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے ان دوسرے بادشاہوں کو فتح کیا، اور انہوں نے تمام لوگوں کو صدوم اور عمورہ سے نجات دلائی، اور خدا کو امید تھی کہ وہ اپنی روش بدل لیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ پرانے راستوں پر واپس چلے گئے اور بھی خراب ہو گئے۔ وہ بھی جب خدا نے لاٹ اور اس کے خاندان کو صدوم سے بچانے کے لیے فرشتے بھیجے کہ شہر کے لوگوں نے فرشتوں کو گالی دینا چاہا، اور آخر کار خدا نے کہا کہ بھاگو، ایسا نہ ہو کہ آنے والے غضب سے بھاگ جاؤ، اور کہا کہ پیچھے موڑ کر بھی مت دیکھنا۔ اور فرشتوں نے قرا ڈالا، اور اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی اور ہاتھ سے اور بنیادی
तौर पर उन्हें शहर से निकालना पड़ा और फिर खुदा ने सदविम और उमुरा पर बादशाही की आग और गंधक आसमान से बाहर इब्राहिम को आउब्रोन के पहाड़ों से मैदान की तरफ देख सकता था। सोडोम की तरफ से ये सैयारे पर सबसे कम जगह है। क्या अब जानते हैं कि वादी ऑर्डन सतह समंदर से 1300 फुट नीचे है और उसका कहना है कि इस जगह का धुआं भट्टी की तरह ऊपर उठता है। कैरन और मैं अपने शायद कुछ हफ्ते पहले ही खबरों में सुना था। हमारे पास ओरवेल कैलिफोर्निया के करीब आग लग गई थी और मैं और कैरन सड़क पर आ रहे थे। हम इसे दूर से देख सकते थे और ये एक एटमी धमाके की तरह लगता था कि ये कैंप फायर इतना बड़ा बड़ा मशरूम बादल था और खुदा ने मैदान के इन शहरों को रब के सामने आग से तबाह कर दिया। और बाइबल हमें बताती है कि खुदा बिलाखिर एक नया बनाने वाला है, आसमान और नई जमीन। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं कैरन को यहां से बाहर लाने जा रहा हूं। मुझे कुछ अनोखा चाहिए जिससे मैं ये जाहिर करना चाहता हूं कि लोगों को लगता है कि आपको सदविम और उमुरा की कहानी मिली है और ये सिर्फ एक अफसाना है या ये एक परियों की कहानी है और सबक सिखाने की कोशिश करना है। तो मैं समझ गया कि हम सिर्फ मिसाउडव में थे और शायद 3 साल पहले ऑर्डन की वादी में और इस इलाके में जहां सदविम और उमुरा के बारे में ख्याल किया जाता है कि पहाड़ियां राख से भरी हुई हैं और राख में उन के पास ये गंधक की गेंदें हैं जो सरायत शदा है। ये दुनिया की वाहिद जगह है जहां वो जानते हैं कि आपको ये कहां मिल सकता है कि पहाड़ उन सल्फर के गोलों से जुड़े हुए हैं। जी हां, मैं इसे आपके साथ तब्दील करूंगा और मुझे मिल गया। हाँ, अब मैं यहां देखता हूं। मैं यहां पर जा रहा हूं। हो सकता है कि हम इसे कैमरे पर हासिल कर लें। अब मुझे बताएं कि अगर आप इस पर तवज्जो मरकूज करते हैं। ओ, इसे देखें, इसने पहले ही उतार लिया। मैंने इसे लाइटर से सिर्फ 1 सेकंड के लिए छुआ। मुझे नहीं मालूम कि क्या आप देख सकते हैं कि बुलबुल और तंबाकू नोशी ये गंधक के गोले हैं जो इसमें सरायत कर रहे हैं। अब सब धुआं देखें, मैंने इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए छीन लिया। इसने फौरन उतार लिया। अब गंधक और गंधक में नहीं रहना चाहते। मैं आपको छोड़ दूंगा प्यारे, इससे पहले कि फायर डिपार्टमेंट दिखाए। इसे फोन पर मत लगाएं। जिस वजह से मैं इससे गुजर रहा हूं वो आपको बताना है कि ये कोई अफसाना नहीं है, ये वाकई में हुआ। ये हकीकी तबाही थी। बाइबल के मुताबिक गुनाह के नताइज होते हैं। क्या आप आमीन कह सकते हैं? सवाल नंबर 2, अगली कतार में मौजूद लोगों को शायद इस वक्त सड़े हुए अंडों की बो आ रही है। बदकार जहन्नम की आग में कब तबाह होंगे? जवाब ये कहता है कि रब जानता है कि खुदा प्रस्तों को फितना से कैसे निजात दिलाना है और जालिमों को क़यामत के दिन के लिए किस तरह सजा के तहत महफूज रखना है। अब जब हम जहन्नम की आग के मौजू पर बात करते हैं तो इसमें 1-2 इंतहा हैं। एक गिरोह कहने जा रहा है कि वाकई कोई नहीं है ऐसी चीज के खुदा ये सिर्फ एक बात को डराने के लिए है। सड़क पर मौजूद लोगों में से एक ने कहा, ओहा, बस जहन्नम लोगों को डराने के लिए है और उसका कोई वजूद ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमेशा के लिए जलता है और कभी और उन्हें जहन्नम में जलते हुए लोगों की ये तस्वीर मिली है और वो कहते हैं कि वो पिघली हुई आग और गंधक में है और वो जल रहे हैं और ये कभी नहीं रुकता और उन्हें कब तक सुकून नहीं मिलता, हमेशा और अब भी। मैं नहीं जानता दोस्तों अगर आप समझ सकते हैं कि ये कैसा होगा। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों को याद है कि चंद साल पहले जब हम ISIS के साथ लड़ रहे थे, एक उर्दनी फाइटर को गोली मारकर एक नौजवान पायलट मारा गया। वो दरअसल किसी और का बेटा था। मुझे यकीन है कि ये फौज में था और उसका ख्याल था कि वो कैदियों के तबादले की बातचीत में शामिल है, लेकिन हकीकत में वो इसे बाहर ले आए। उन्होंने इसकी वीडियो टेप की और वो इसे सहरा में ले गए और उन्होंने इसे एक पिंजरे में डाल दिया, एक धाती पिंजरे में जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने इसे पेट्रोल या कोई आग लगाने वाले सयाल से डुबो दिया और अपनी वीडियो रूलिंग के साथ उन्होंने एक माचिस फेंक कर इसे आग लगा दी। और फिर उन्होंने इसे नशर किया। उन्होंने इसे इंटरनेट पर डाल दिया और दिखाया कि वो इस पायलट के साथ किया कर रहे हैं और इसे मरने में कई मिनट लगे और उसके वालिद को दिखाया गया कि अब आप और मैं हम ये सुनते हैं और ये सिर्फ मैं आपके चेहरे के तासुरात देख सकता हूं। ये खौफनाक है। यहां एक सवाल है, क्या आपको हमारे आसमानी बाप पर यकीन है? इसकी तख्लीक की चीजों को ले जाएगा जो उसकी शबीह में बनी थीं, जो गुनाह करने के कुछ फितरी रुझान के साथ पैदा हुई हैं। और अगर हम इस पर काबू नहीं पाते हैं तो वो कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें जलाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए जलाने जा रहा
हो तुम जानते हो बाइबल ये नहीं सिखाती कि बाइबल सिखाती है कि वहां जहन्नम है। जिस तरह सदविम और उमुरा थे उन्हें सजा दी गई, बाइबल सिखाती है कि शरीरों को जलाया जाता है जहन्नम। अब यहां सवाल यह है कि ऐसा कब होता है? हमने अभी क्या पढ़ा? ये कहता है कि रब जानता है कि खुदा प्रस्तों को फितना से कैसे बचाना है और आपको कभी भी किसी रिसत्तूरा में टेबल रिजर्व करना है। इसका मतलब है कि आप इसे इस वक्त तक पकड़ेंगे जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते, ठीक है? तो अगर खुदा बुरे लोगों को क़यामत के दिन के लिए महफूज कर रहा है तो इस वक्त कितने लोग जहन्नम में जल रहे हैं? क्या फैसले का दिन गुजर चुका है या मुस्तकबिल है? ये बिल्कुल वाज़ेह है। यसू ने कहा कि क़यामत का दिन आखिरी दिन है। वो इसे कहते हैं फैसले का दिन मुस्तकबिल में है। लोग क़यामत से पहले जहन्नम में नहीं जल रहे हैं और क्या हर कोई हमेशा के लिए जलता है? क्या बाइबल नहीं कहती कि इनामात के मुख्तलिफ दर्जात हैं? अगर इनामात के मुख्तलिफ दर्जात हैं तो ये कितना मुनासिब होगा अगर कोई नौजवान जिसे अब जानते हैं कि वो गलत सलूक करते हैं, वो गलत किस्म की जिंदगी गुजारते हैं और वो हार जाते हैं और वो स्टालिन और हिटलर की तरह जलते रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि मैं सिर्फ आपके खालिस जहनों को उभारना चाहता हूं और आपको सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं, और हम आपको हर इस चीज के लिए सहीफा देंगे जो हम कहते हैं कि मैं जानता हूं कि कुछ मुख्तलिफ मुश्किल आयात हैं। हम उन सब का जवाब देने जा रहे हैं। हम किसी सहीफे से नहीं डरते। आमीन। उनका फैसला कब होगा? जो मैंने बोला है वो उन का फैसला कब करेगा? आखिरी दिन। आइए रब के फैसले के दिन के बारे में बात करते हैं। और दोबारा मैथ्यू बताता है, यसू मैथ्यू 13 में एक तमसील सुनाता है, घास और झाड़ियों को अलग करने के बारे में बात करता है और ये कहता है कि दुनिया के आखिर में फरिश्ते निकलेंगे, वो करेंगे झाड़ियों को जड़ों में जमा करके जला दो। ये कब होता है? इस जमाने के आखिर में इब्न आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा जो लाकानूनियत करने वालों को इकट्ठा करके आग की भट्टी में डालेंगे। अब क्या ये बात यसू की तालीमात से बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई सज़ा है? आपका क्या ख्याल है? हाँ, क्या ये यसू की तालीम से बिल्कुल वाज़ेह है कि आग लगने वाली है? इसमें शामिल? हाँ, बिल्कुल। तीसरे नंबर पर, अगर मरने वाले बदकार अभी तक जहन्नम में नहीं है तो कहाँ है? क्या वो लंबू में है? क्या वो परगटरी में है? क्या वो अब में किसी दरमियानी जगह को जानते हैं? इब्राहिम का सीना कुछ कहता है। बाइबल क्या कहती है? यसू ने कहा जान 5:28 और 29, वो वक्त आने वाला है जब वो कहता है कि वो आ रहा है। क्या इसका मतलब माजी है या मुस्तकबिल? वो वक्त आने वाला है जिसमें वो सब कहाँ है? कब्रों में इसकी आवाज सुनेंगे और वो लोग निकलेंगे जिन्होंने मजम्मत की क़यामत तक बुराई की है। क्या अब जानते हैं कि बाइबल सिखाती है कि 2 क़यामतें हैं? बाइबल हमें बताती है कि सादक़ैन का जी उठना है, जो मसीह में मुर्दा पहले जी उठता है। अगर आपको पहली क़यामत मिल गई है तो इसका क्या मतलब है? कहीं आपको क्या मिला? दूसरा, पहला एक सिलसिलावार लफ्ज़ है, कोई एहसास नहीं। पहले कहना अगर और कुछ नहीं है, कहता है कि पहली क़यामत है और बाकी मुर्दे दोबारा जिंदा नहीं होंगे जब तक कि 1000 साल खत्म ना हो जाएं। ये मुकाशिफा का 20 बाब है। तो अगर मसीह में मुर्दे पहले हैं तो बाकी मार्दे कौन हैं? वो लोग जो मसीह को खो चुके हैं। ईसा ने कहा कि वो अपनी कब्रों में कहाँ हैं। अब ये बहुत अहम है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो यकीन करते हैं कि उनके प्यारे मर चुके हैं जो खो चुके हैं। वो यकीन रखते हैं कि वो अभी नीचे जल रहे हैं। अब जानते हैं कि लोग यकीन रखते हैं कि पहाड़ी मिल गई है, नीचे कहीं एक टॉर्चर चैम्बर है और उन के लोग जल रहे हैं। मुझे याद है कि वो एक सुपर मार्केट में लाइन से गुजर रहे थे और मैंने इनमें से एक टैब्लॉइड मैगजीन को देखा जिसकी उन्हें काफी इश्तियाल अंगेज कवरेज मिली। आपको कभी कभी हंसना पड़ता है। और ये कहा, साइबेरिया में कुनवें डिरिल करने वाले बहुत गहरे जाते हैं, डैमनस फरार। और वो कहते हैं कि वो वाकई जहन्नम में डूब गए हैं और शयातीन फरार हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो बाइबल सिखाती है। वो फिर अपनी कब्रों में हैं। आपके लिए एक और आयत, अय्यूब XXI आयत 32 और 32, बदकार क़यामत के दिन के लिए मखसूस हैं। वो कहाँ लाए जाएंगे? कब्र, और कब्र के ऊपर एक चौकीदारी रखी गई है जो कहती है कि वो अपनी कब्रों में हैं। वो कब्र में है, उन्हें उनकी कब्रों में लाया जाता है। वो फैसले के दिन का इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में अब जानते हो। मुझे यकीन है कि ऐसे लोग भी हैं जो ये
सोच कर पागलपन की तरफ धकेल रहे हैं कि वो जिससे प्यार करते हैं वो मर गया है, और जब वो जमीन पर चल रहे हैं तो ये लोग रो रहे हैं और चीख रहे हैं और चीख रहे हैं। शोले जो मैं बरसों पहले एक क्रिश्चियन रेडियो स्टेशन पर सुन रहा था, और लोग बाइबल के सवालात में पुकारेंगे, और बाइबल के सवालात पूरे बोर्ड में थे। क्या मेरा मतलब है कि स्टेशन में कुछ अच्छा म्यूजिक था और वो बाइबल को अच्छी चीजें पढ़ते थे, लेकिन जब ये लड़का आया और सवालात के जवाबात देने लगा तो मुझे इसके साथ हकीकी मसाइल का सामना करना पड़ा। और मुझे याद है कि एक बार सुना था, एक माँ ने फोन किया और आप उसकी आवाज की क्रीक से बता सकते थे कि वो जाहिर है बहुत गम में है, और इसने कहा कि भाई फलां प्रोग्राम के मेजबान पादरी से बात करते हुए इसने कहा कि मेरा बेटा कुछ दिन पहले फौत हो गया था। एक कार हादसे में इसने खुदा पर यकीन करने का कोई पेशा नहीं किया। वो बेदीन जिंदगी गुजार रहा था, और मुझे अभी मालूम हुआ है कि क्या वो इस वक्त जहन्नम में जल रहा है। खैर, पहले इसने सवाल करने की कोशिश की। इसने कहा नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर इस बात का कोई सबूत है कि एक शख्स खो गया था तो इसने सिर्फ खुदा को लानत भेजी और एक बुरी जिंदगी गुजारी, और वो एक दरख्त से भागा और फौरन मर गया। क्या वो जहन्नम में जल रहा है? और आखिर कार एक से बचने की कोशिश करने के बाद सीधा जवाब इसने कहा, अच्छा अब जानते हैं बाइबल के मुताबिक अगर वो बगैर मसीह के मर गया तो अगला पड़ाव बगैर गुजरे क्या वो जहन्नम में है, और कब तक वहां रहेगा? हमेशा के लिए। अब क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमेशा के लिए? ये कब तक है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स मर जाए और वो जहन्नम में जल रहा हो तो आप कभी एक मिनट के लिए भी अपने आप को जलाते हैं। एक शख्स मर जाता है और वो जहन्नम में होता है, इसका मतलब है कि अब से 10 लाख साल बाद अब सतह पर तैरने की कोशिश करते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, और खुदा कहता है कि आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है, अब कभी शुरू तक नहीं पहुंचते, आप कभी भी अजियत और तकलीफ को महसूस करना बंद नहीं करते। एक जिंदगी भर के गुनाहों के लिए मसाइब और चीखता हुआ शदीद जलता हुआ दर्द हमेशा हमेशा के लिए। 90 साल कितना अरसा है? अबदियत के मुकाबले में यह गैर मौजूद है कि इस मामूली जिंदगी के लिए किसी शख्स को हमेशा और हमेशा के लिए जला दिया जाए। बरा करम इंसाफ की वजाहत करें। और जब आप कुछ पादरियों से पूछें, मैंने कहा, अच्छा हम कौन हैं? हम नहीं समझते कि गुनाह कितना बुरा है, और वो खुदा है और यही सजा है। अब मैं आपको कुछ सोचने दूं दोस्तों। ईमानदार हो, आप में से कितने लोग इस बात को तस्लीम करेंगे? तमाम गुनाह और खुदा के जलाल से महरूम हैं। बाइबल कहती है कि हम सब ने गुनाह किया है। हम सब का फितरी तौर पर गुनाह की तरफ झुकाव है, और फिर एक शख्स को हमेशा के लिए अजियत देने के लिए जिसे आपने तख्लीक किया है, अब ज़ाहिरी तौर पर मोहब्बत करते हैं, और अब एक आदिल खुदा है हमेशा के लिए और हमेशा एक बहुत ही मुख्तसर जिंदगी के गुनाहों के लिए। क्या ये मानी रखता है? ये बाइबल नहीं है। मैं आपको बाइबल से दुखाने जा रहा हूं। आमीन। सब से पहले अभी तक कोई नहीं जल रहा। नंबर 4, तमाम लोगों के लिए सिर्फ 2 ही इंतखाब किया है, इसीलिए ये एक अहम मौजू है। बाइबल कहती है कि यसू ने कहा कि खुदा के लिए दुनिया से इतनी मोहब्बत है, इसने अपना इकलौता बेटा दिया कि जो इस पर ईमान लाए वो क्या न करे फना। लेकिन लाजवाल 2 इंतखाब क्या है? जिंदगी आफना होने का मतलब यह है कि आप का वजूद खत्म हो जाएगा जब आप बाजार जाते हैं और आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जो फना हो जाती हैं। इसका मतलब है कि आप उन्हें फर्ज में रख लें, जल्दी से खा लें, क्योंकि वो फना होने वाले हैं, वो नहीं रहेंगे। खुदा ने क्या कहा आदम और हवा को, अगर तुम हराम फल खाओगे तो जरूर खाओगे। 2 इंतखाब हैं दोस्त। आपको जिंदगी मिली मौत जिंदगी की अदम मौजूदगी। खुदा ने ये नहीं कहा कि आपको जन्नत में अबदी जिंदगी मिली है। अबदी जिंदगी जल रही है, क्या ये ठीक नहीं? मरने से पहले मूसा वो बनी इसराइल के सामने खड़ा हुआ। इसने कहा कि मैंने आज आपके सामने 2 ऑप्शन रखे हैं, जिंदगी अच्छी नेमत, मौत बुरी लानत। जिंदगी का इंतखाब करें। जिंदगी तो हर कोई चुन सकता है, लेकिन शैतान, किसको याद है कि हमने शैतान के बारे में क्या सीखा? वो खुदा के बारे में गलत बयानी करना चाहता है। अब जानते हैं कि यह मजमून मेरे लिए क्यों अहम है। मेरे पास अपनी गवाही के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मैं 9वीं जमात तक 14 मुख्तलिफ स्कूलों में गया हूं। मैं से कुछ इसलिए कि मेरे वालिदैन ने इसमें से कुछ को इसलिए मुंतकिल किया कि मैं एक था मुसीबत पैदा करने वाला। और मैं जानता हूं कि आपको यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़ी परेशानी में पड़ गया। मैं यहूदी स्कूलों में गया, मैं 2 मुख्तलिफ फौजी स्कूलों में गया, मैं सरकारी स्कूल गया, मैं 2 कैथोलिक स्कूलों में गया, और बाकी सब की तरह मैंने सुना कि अगर आप अच्छे लड़के हैं और आप
यसू पर यकीन रखते हैं तो अब जन्नत में जाएंगे। मैं वाकई उलझन में था क्योंकि मेरी माँ यहूदी थी लेकिन मेरे वालिद ने बपतिस्मा देने वाले की परवरिश की थी। वो दोनों मुल्हिद हैं। वो मुझे कैथोलिक स्कूल भेजते हैं तो तुम शक्ल में जाओ। और जब मैं न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी जाता था तो हर हफ्ते आपको किसी ऐसी सर्विस में जाना पड़ता है जिसमें आप प्रोटेस्टेंट सर्विस या कैथोलिक सर्विस में से एक का इंतखाब कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि मैंने अभी कोशिश की कि मैं उन सबको मिलाता रहा, लेकिन वो हर तरह से एक ही बात कही, आप अच्छे हैं, आप जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर आप बुरे हैं तो आप जहन्नम में जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में मजीद जानने की जरूरत है क्योंकि मैंने सोचा कि मैं वहीं जा रहा हूं। और मैंने कहा अच्छा तुम जा रहे हो, ये आग है, तुम जानते हो, और तुम वहीं नीचे होगे और तुम जलने वाले हो। कौन, कब तक? हमेशा आपके ख्याल में इसने मेरी खुदा की तस्वीर के साथ किया। मैंने अपनी जिंदगी के अवाइल में फैसला किया। मैंने कहा कि ना सिर्फ ये मानना नहीं चाहता कि मैं इस पर यकीन करने का मुतहम्मिल नहीं हूं क्योंकि अगर कोई खुदा है तो वो कायनात में सबसे घटिया हस्ती है। मैं यहां हूं, तुम जानते हो, सिर्फ एक घटिया बच्चा है और मैं मदद नहीं कर सकता। मेरा बुरा सलूक और इस ने मुझे बनाया। किसी ने मुझे बने आना होने पर वोट देने को कहा और उसने मुझे बनाया, और वो कहता है कि अगर तुम अच्छे नहीं हो सकते और मुझे ये बहुत मुश्किल लगा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जला दूंगा। मैं कभी भी खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि अगर कोई खुदा है तो मैं इससे नफरत करता हूं, लेकिन जब मैंने इस मौजू पर बाइबल की सच्चाई को सीखा तो इस ने मुझे आजाद कर दिया, जहां मैं आखिरकार खुदा से मोहब्बत करने के काबिल हो गया। इसलिए ये मेरे लिए अहम है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, जिंदगी या मौत। शोलों में अबदी जिंदगी। ये वो नहीं है जो पाल ने कहा, उजरत जुर्माना गुनाह का बदला जिंदगी की मौत है। पहला झूठ किया था। ये कभी कहा गया था कि खुदा ने हवा को कहा कि अगर तुम ममनुआ फल खाओगे तो तुम जरूर मर जाओगे। इसने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम मरोगे, कहा कि तुम जरूर मरोगे। इसका मतलब है जैसे बदकार चुड़ैल, मुर्दा मुर्दा बहुत मुर्दा। और सांप ने औरत से कहा कि तुम यकीनन नहीं मरोगे, आ तो हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, आ फिर जहन्नम में हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं इंचार्ज हूं। बाइबल ये नहीं कहती कि पहले झूठ बोलो। फिर सांप ने औरत से कहा तुम यकीनी तौर पर नहीं मरोगे। इसने झूठ बोला। जहन्नम की आग में बदकारों का क्या होगा? ज़बूर 37 का जवाब दें। आइए मालूम करते हैं बाइबल क्या कहती है कि शरीरों का अजर है। परेशान ना हो, हम नेक लोगों के इनाम की बात खत्म करने जा रहे हैं। मैं एक अच्छे नोट पर खत्म करना चाहता हूं। थोड़ी देर चीखें और शरीर नहीं रहेगा। कि आई कहता है कि वो कहीं टार्चर चैम्बर में होगा, आ मजीद नहीं। और ना ही मेरा मतलब है कि आपका वजूद खत्म हो जाए गा। शरीर क्या करेंगे? धोई में फना हो जाएंगे, बखर जाएंगे, गायब हो गए। फिर से अपने मिल्की के बाब 4 आयत में पढ़ा, 1 और 3 दिन आ रहा है, तंदूर की तरह जलता है, और कितने हैं जो लोग बुरे काम करते हैं, वो सब का भूसा होगा। ये इसके बारे में बात कर रहा है जो यहूदी फसल काटने के बाद खेतों के साथ किया करते थे। वो अब भी कैलिफोर्निया में हमारे गर्द चावल के खेतों को साक्रामेंटो में करते हैं। उन्होंने उनको आग लगा दी और वो ना सिर्फ ऊपर का पराठा जलाते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये सिर्फ खूंटा नहीं है, शाख में जड़ को जला देगा। अगर तुम दरख्त की जड़ को जला दो तो वो वापस नहीं आता। कहता है जब कोई चीज जल जाएगी तो वो जल जाएगी। जो कुछ नहीं बचा है तुम रौंद दोगे शरीर, क्योंकि वो आपके पैरों के तुलों के नीचे राख होंगे। ये नहीं कहते हैं कि वो अब भी जल रहे हैं। आप चलते फिरते घूमने नहीं जा रहे हैं। वो ये गर्म है जैसे आप एक फजेफाए वाकर हैं। वो जा चुके हैं, वो जल चुके हैं, और वो इस नंबर 6 पर एक नया आसमान और एक नई जमीन बनाने जा रहा है। अब जहन्नम की आग कहाँ वाक़ई होगी? ये बात लोगों को हैरान कर देती है। बहुत से लोगों को यकीन करना सिखाया जाता है। अब मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए और अब समझ जाएंगे कि जहन्नम में 4 अल्फाज क्यों हैं। बाइबल जिसका तर्जमा जहन्नम के तौर पर किया जाता है, पुराने अहदनामा में सबसे आम लफ्ज़ शिविल है, जिसका सीधा मतलब है कब्र। ये एक इब्रानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है कब्र। वो नीचे जाएगा। लोग सोचते हैं कि जहन्नम जलता हुआ आतिश फिशा गार है, वही नीचे कहीं है, क्योंकि ये नीचे पाताल में कहा जाता है, क्योंकि यहूदियों ने अपने मुर्दा को दफन किया था, जहां कुछ काफरों ने अपने मर्दों को जमीन से भी ऊपर दफन किया था, लेकिन यहूदियों ने उन्हें दफन किया था तो वो हमेशा पाताल में कहते थे। फिर आपको लफ्ज़ हिडीज मिला है जो यूनानी अफसानों से
हेड्स एक ऐसी जगह थी जिस पर प्लूटो देवता ने हुकूमत की थी, जो जहन्नम के शिकारियों का इंचार्ज था। और शैतान के बारे में हमारी बहुत सी खुराफात फिर प्लूटो के इस तसव्वुर से आते हैं। आपके पास लफ्ज़ टार्टस था। टार्टस का मतलब सिर्फ अंधेरे की जगह है। ये बाइबल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है, फिर आपको लफ्ज़ गहना मिल गया है। अब ये वो है जिसने लोगों को मिलाया है, क्योंकि यरूशलेम के बाहर उनके पास कोई चीज़ है जिसे हुनविम की वादी कहते हैं। ये भी जहन्नम है, वही लफ्ज़ वही जगह है। ये शहर का कूड़ा क्रिकेट था, और ये एक बहुत ही ऊंची वादी थी जो पथरीली थी। तामीर के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी। ये शहर के दरवाजों से ज्यादा दूर नहीं था कि लोग शहर का कचरा उठाकर हुनविम की वादी में फेंक देते हैं। अब एक वजह वो है, वादी हुनविम शहर का कूड़ा था, क्योंकि इसराइल के पहले बादशाहों में से कुछ खुदा से फिर गए थे और उन्होंने वहां काफिर बुतों को कायम किया था और इसे बुतों और काफिर देवताओं का मुकद्दस मकाम बना दिया था। और इस तरह खुदा परस्त बादशाह भी साथ आए थे। उन्होंने कहा कि हम इसकी बेहुरमती करेंगे और इसे कूड़ेदान बनाएंगे। याद रखें कि नेबूकदनजर ने कहा था कि जो कोई दानियाल के देवता की इबादत नहीं करता, इसके घर को गिराकर एक कूड़ेदान में तब्दील कर दिया जाएगा। ये उन कामों में से एक था जो उन्होंने एक जगह की बेहुरमती करने के लिए किया था, और इसलिए ये कीड़ों से भरा हुआ था, क्योंकि अब जानते हैं कि वो मुर्दा जानवरों को फेंक देते हैं। वहां नापाक और उनके पास टोकरियां होंगी जिनसे धुआं आ रही थी। वो इसे जला देंगे ताकि गैसों को कम रखा जा सके। और इसलिए ईसा ने कहा कि बेहतर है कि तुम अपना हाथ काट दो, आंख निकाल कर जन्नत में जाओ। अपनी आंख और अपनी आंख रखने से हाथ और पांव और जहन्नम में जा रहे हैं, जहां कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती है। ईसा क्या कह रहा था कि तुम बेहतर हो, और मैं सब समझता हूं कि हाइपरबिल किया है, इस्तिआरा किया। यहां कोई ये मानता है कि हम एक आंख की पुतली को पांव हाथ से महरूम करके जन्नत में जाने वाले हैं। यसू कह रहा है कि अगर आपके पास कोई गुनाह है जो आपके हाथ आपके पांव आपकी आंख के करीब है और ये आपको ज़ाय कर देगा, इसे इतना ही मुश्किल से काट दें कि आपके साथ जाने से बेहतर है कि आप जन्नत में दाखिल हो जाएं। जहन्नम के लिए एक मुकम्मल जिस्म वो कूड़ा जहां बदकारों को सजा दी जाएगी। और इसने शहर के बाहर इस वादी की तरफ इशारा किया जहां धुआं आ रहा है और ये कीड़ों से भरा हुआ है, जो नहीं मरते कीड़े जो खा रहे हैं। ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। लोग हमेशा हमेशा के लिए कीड़े खा जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए ये इस्तिआरा है। तो जहन्नम कहाँ जलेगी? क्या ये नीचे किसी गार के रास्ते में है? क्या आप जानते हैं कि उनके पास सोने की कान है? जनूबी अफ्रीका। मैं अपने बेटे के साथ वहां गया और ये इतना गहरा है कि अब जमीन के पर्दे के करीब पहुंची। ये वाकई गर्म है। वो गरीब लोग नीचे काम कर रहे हैं, उन्हें हर वक्त ठंडी हुआ चलानी पड़ती है और वो 120 डिग्री नीचे काम कर रहे होते हैं। क्या वो जहन्नम है? तुम जानते हो कि जहन्नम कहाँ जलने वाली है? यही न्यूयॉर्क शहर में। ये बाइबल कहती है कि अब दूसरा पतरस बाब 3 पढ़ सकते हैं। अनासिर शदीद गर्मी से पिघल जाएंगे और जमीन और इसमें होने वाले काम दोनों किया होंगे। जल गया। ये यहां दोबारा होने वाला है। आप पढ़ सकते हैं कि ये हमें एक वही में कहां बताता है। आयत 9। वो जमीन की चौड़ाई पर चढ़ गए और मकद्सों के डेरे को घेर लिया। प्यारा शहर वो नया यरूशलेम है और खुदा की तरफ से आसमान से आग उतरती है और उन्हें खा जाती है। मैं इस मजाजी हकीकत के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं यहां नहीं देखना चाहते। मुझे ये मालूम करना है कि वो क्या कर सकते हैं। हैरत है कि क्या मैं गुजर सकता हूं? नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। ये गलत लफ्जी तस्वीर है। तो जहन्नम कहां जलने वाली है? आग जमीन पर उतरती है। खुदा इस दुनिया को आग से पाक करने वाला है। और पाकी हुई राख पर इसीलिए कहता है तुम नए यरूशलेम से निकलेंगे। अब शरीरों को रौंदेंगे, क्योंकि वो आपके पांव के तले की राख हैं। क्योंकि मुबारक हैं हलीम वो क्या वारिस होंगे जमीन। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि खुदा एक नया आसमान बनाता है। वहां लफ्ज आसमान का मतलब ये नहीं होता कि वो कहां रहता है, बल्कि एक नई फिजा। और नई जमीन हमारी फिजा आलूदा है। हमारी जमीन आलूदा है। वो इस सैयारे को दोबारा बनाने जा रहा है। खुदा ने शुरू में एक मंसूबा बनाया था, वो अपना कामिल मंसूबा मुकम्मल करने जा रहा है। आप इस पर यकीन करें दोस्तों। जहन्नम के बारे में एक और बड़ा अफसाना कौन बड़ा और जहन्नम का इंचार्ज है? वो कैरन का कहना है कि मैंने रिवर्स याद किया, मुझे बैक अप करने दो। वो गए, मैंने ये पढ़ा है ना। वो जमीन की चौड़ाई पर चढ़ गए। उन्होंने प्यारे शहर को औलिया के डेरे को घेर लिया और खुदा की तरफ से आसमान से आग उतरी और उन्हें खा गई। तो वो वहां नीचे आ रही है। हम जमीन पर हैं जब वो उतरती है और उन्हें खा जाती है। तो जहन्नम की आग का जिम्मेदार कौन है? क्या ये शैतान है? आप में से कितने लोगों ने ऐसे लतीफे सुने होंगे जिनके बारे में आप जानते हैं कि सुनहरी दरवाजे के इंचार्ज सेनेट पीटर्स हैं?
और हर एक को अंदर जाने के लिए सेनेट पीटर के जरिए जाना पड़ता है। और मैंने सेनेट पीटर के बारे में कुछ वाकई मुज़क्क़ाखेज़ लतीफ़े सुने हैं जब वो लोगों को चेक आउट कर रहे हैं, उनका जन्नत में जाने का रास्ता, और फिर उन्हें मिला के शैतान जहन्नम का इंचार्ज है। अपने से कितने लोगों ने पहले ये सुना होगा, और यही वजह है कि इसे ज़ाहिरी तौर पर यह बड़ा पिच और त्रिशूल मिला है। ये नीचे एक बड़े बारबीक्यू की तरह है। वो इस बात को यकीनी बनाता है कि लोग इसे यकसा तौर पर पकाते हैं, और फिर मैं नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन क्या बाइबल यही सिखाती है? जहन्नम का इंचार्ज शैतान है। बिल्कुल। हमने सीखा है कि शैतान ऐसा नजर नहीं आता। कोई बाइबल नहीं कहती कि शैतान जहन्नम से इतना ही डरता है। जहन्नम उसके लिए तैयार की गई थी। जिस शैतान ने उन्हें धोखा दिया था, इसे आग और गंधक की झेल में डाल दिया गया था। वो इसे झेल क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं है कि अब झेल जीनेसरेट अजीम झीलों को जानते हैं या इस तरह की कोई और चीज। 1000 साल के इख्तिताम पर हमारे पास इस नए यरूशलेम पर एक सबक है जो खुदा की तरफ से आसमान से नीचे आता है, जमीन पर आबाद होता है। वो तमाम बदकार जो अब तक जिंदा रहे हैं, जी उठे हैं। शैतान इन तमाम बदकारों को देखता है जो कभी जिंदा रहे हैं। उन्हें कभी कभी आजवज और माजवज कहा जाता है, और वो उनको खुदा के शहर के खिलाफ एक आखिरी हमले के खिलाफ जलसा करता है। वो अजीम सफेद तख्त का फैसला कर रहे हैं। शैतान दिखाता है कि वो तब्दील नहीं हुआ, और ये कहता है कि खुदा फिर आग बरसाता है। और इसी तरह खुदा नूह के जमाने में शरीरों को तबाह करने के लिए पानी की बारिश की, यहां तक कि वो कुश्ती को तैरने लगा। खुदा ने यरूशलेम के बाहर आग बरसाने वाला है। सिर्फ कुश्ती में रहने वालों को बचाया गया, सिर्फ शहर वालों को बचाया गया, और ये एक झेल बनने वाली है। फिक्र ना करो, दीवारें बड़ी हैं और आपकी हिफाजत की जाएगी, क्योंकि ईसा नूह है और उसने शहर बनाया था। वो हमारा नूह है, लिहाजा बोलने के लिए और बाहर का हर शख्स तबाह हो जाएगा। ये एक झेल बनने वाली है, और वो झेल बिल्कुल पुराने सैलाब की तरह दुनिया को पाक करती है। वो आग सैयारे को पाक करने वाली है, और फिर खुदा एक नया आसमान और नई जमीन बनाएगा। शैतान जहन्नम का जिम्मेदार नहीं है, वो इससे डरता है। वो बड़े गजब के साथ उतरा है, क्योंकि वो जानता है कि इसका वक्त कम है। अपने सेकंड पीटर और जूद की किताब में पढ़ा, शैतानों को अंधेरे की हमेशा की जंजीरों में रखा गया है। जब यसू शैतानों को निकाल रहे थे तो बदरूहें बोलेंगी, और वो कहेंगे कि हम जानते हैं जो तुम खुदा के बेटे ईसा हो। क्या तुम वक्त से पहले हमें अजाब देने आए हो? क्या वो जानते हैं कि क्या आने वाला है? वो करते हैं, वो इंचार्ज नहीं है। वो इससे डरते हैं, इसीलिए अब बुरे फरिश्तों की पैरवी नहीं करना चाहते, आप उनके सवाब में शरीक होना चाहते हैं। यसू आखिर में भेड़ों को बकरियों से अलग करने वाला है। वो बकरियों से कहेगा, तुम लानतियों से अबदी आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। और वो बदरूहों से कहेगा कि वो इसका बदला पाने वाले हैं। शैतान के लिए तैयार किया गया था, और उनके लिए जो अपने भाइयों से प्यार करते हैं और रब से मोहब्बत करते हैं। वो कहने वाला है कि अच्छा किया, और वफादार बंदे रब की खुशी में शामिल हो जाएं। दो रास्ते हैं, दोस्त और अल्लाह आपको अपनी बादशाही में चाहता है। इसलिए आप यहाँ किसी भी वजह से हैं, जो आप टीवी या इंटरनेट पर देख रहे हैं, या अब ज़ाती तौर पर यहाँ हैं, खुदा चाहता है कि आप सच सुने, क्योंकि वो चाहता है कि आप बच जाए। यसू आपको बचा सकता है। जी हाँ, वो 8वें नंबर पर आएगा। क्या जहन्नम की आग कभी बुझती है? यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये हमेशा के लिए जलता है? यही तो हम जानना चाहते हैं। सा 48 आयत 14, ये कोई कोयला नहीं होगा जिससे गर्म किया जाए, और ना ही आग के सामने बैठने के लिए एक गर्म कोयला भी बाकी ना रहे। तो बदकार मिल्की को 4-3 रौंद डालेंगे उनकी राख पांव के तले। जिस दिन मैं करता हूं, ये कहता है मेजबानों का रब। ये जल गया है। अब मैं से कुछ सोच रहे हैं, इंतजार पादरी डोब किया बाइबल नहीं कहती। ना बुझने वाली आग ये करती है, और उसका मतलब बिल्कुल वही है जो ये कहता है। जब आप बाइबल में कुछ देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि बाइबल में मौजूद किसी भेद को समझने की किलीद किया है। बाइबल की तशरीह खुद खुदा ही करता है। वो जानता है कि इसका क्या मतलब है, अल्फाज से इस्तेमाल करता है कि मुनासिब लगता है। तो बाइबल का इससे क्या मतलब है? आइए मालूम करें कि इसमें लफ्ज़ ना बुझने वाली आग का इस्तेमाल किया गया है। मैथ्यू 3 आयत 12, यसू ने कहा कि वो खलियान को अच्छी तरह साफ करेगा और अपनी गंदुम को गोदाम में जमा करेगा, लेकिन वो भूसे को ना बुझने वाली आग से जला देगा। क्या ना बुझने वाली आग का मतलब है बुझाना एक फेल है? इसका मतलब है बुझाना कोई नहीं जो जहन्नम की आग बुझाने वाला हो। जहन्नम में कोई फायरमैन नहीं है जो इसे बुझाएगा। इसे बाहर करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे आपको यह साबित करने दो। यिर्मयाह 27, मुझे मुआफ कीजिए, यिर्मयाह 17 आयत 27। यह है यिर्मयाह की एक पेशीन गोई। वो
बाबुल की असीरी से पहले रहता था, लेकिन अगर तुम सब के दिन को खोखला करने के लिए मेरी बात ना मानोगे, जैसे सब के दिन यरूशलेम के दरवाजों में दाखिल होते वक्त बोझ ना उठाओ, तो मैं आग भड़कूंगा इसके दरवाजों में और वो यरूशलेम के महल्लात को खा जाएगा, और वो क्या नहीं होगा। बुझ गया। अब क्या हुआ तुम जानते हो? उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने तौबा नहीं की। नबूकदनजर आया, इसने शहर को तबाह कर दिया, इसने शहर को जला दिया, दरवाजे जला दिए गए, कोई फायरमैन नजर नहीं आया। ये ना बुझने वाली आग थी। मंदिर को जला दिया गया था, ना बुझने वाली आग, इसे तबाह कर दिया गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई फ़आल मसला नहीं है, इसको बुझाने में कोई सरगर्म फरीक शामिल नहीं। जो काम करता है, जहन्नम की आग अबदी है, दोबारा वापस नहीं आती। यही हमारा अगला है सवाल। क्या अबदी आग का मतलब लामुत्तनाही नहीं है? ठीक है, अब को उनके सियाक को सबाक में चीजें पढ़नी पड़ी। आइए सदविम और उमूराजूद 1 आयत 7 की कुछ मिसालें देखें। अबदी आग से खुदा का क्या मतलब है? सदविम और उमूरा और उनके आसपास के शहर, उनको एक मिसाल बनाकर पेश किया जाता है कि किस किस्म की आग का इंतकाम झेल रहे हैं। अबदी आग। यहां एक सवाल यह है कि सदविम और उमूरा आज भी जल रहा है कि यह शहर कभी कहां तामीर हुआ? आग का नतीजा था अबदी कोई बख्शिश नहीं थी, कोई क़यामत नहीं, कोई तामीर। नो, ये वही है जो नुकसान की किस्मत में होने वाला है। इसका मतलब है कि इस आग के नताइज अबदी हैं। मुझे ये प्लेक्सिग्लास मिंबर ज़ाहिरी तौर पर काफी गर्म है, ये पिघल जाएगा। मैं जानता हूं कि क्योंकि पादरी डोग एक बार एक नाउम्र हाल में था और मैं फरार होना चाहता था, और मुझे कुछ मैच मिले और मैं प्लिकिस गलास के कुलाबे को जलाने में कामयाब हो गया ताकि मैं नाउम्र हाल से बाहर निकल सकूं, तो प्लेक्सिग्लास जल गया। मैं जानते हैं कि तो ये एक बहुत अच्छा मिंबर है। अगर हम इस मिंबर को अलाव में फेंक दें और इसे जला दें तो आप कह सकते हैं कि इसे अबदी आग से जला दिया गया है, क्योंकि आप इस मिंबर को दोबारा कभी नहीं देखेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, खुदा आग के नताइज बता रहा है। अबदी हैं, वो इस बात पर जोर देता है कि अगर अभी आप मर जाते हैं और आप बच जाते हैं तो उम्मीद मत छोड़ी, एक क़यामत है। लेकिन अब जानते हैं कि खुदा क्या कहता है, शरीरों की तबाही दूसरी मौत है, कोई क़यामत नंबर 11 नहीं है, जबकि मुकाशिफा काफी आयत 10 बताती है कि बदकार को हमेशा के लिए अजाब दिया जाएगा। अब ये शायद सबसे मुश्किल आयत है जो कहती है हमेशा के लिए। पादरी डो, क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए जल गए? बाइबल को अपनी तशरीह करने दें। बाज़ औक़ात खुदा उन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करता है, जैसा कि मैंने हाइपरबोल में कहा, आपको इसे इसके सियाक व सबाक में इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या आपको बाइबल में दूसरी मिसालें मिल सकती हैं जहां खुदा हमेशा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, लेकिन जाहिर है इसका मतलब था जब तक कि वो मर न गए। यूनस की कहानी देखी। यूनस के बारे में कितने जानते हैं? यूनस कब तक मछली के पेट में था? 3 दिन और 3 रातें। हम इसे 1 सेकंड में यूनस बाब 2 में पढ़ने जा रहे हैं। जब वो दुआ करता है, वो क्या कहता है? जमीन अपनी सलाखों के साथ हमेशा के लिए मेरे पीछे बंद हो गई। अब अगर आपको वहेल मछली ने निगल लिया तो ऐसा ही हुआ। ओमो, तकरीबन 6 महीने पहले, ये असल में यूट्यूब पर है। अब देख सकते हैं कि एक लड़का केक कर रहा था और एक बड़ी वहेल को यह मालूम नहीं था कि वो वहां काका में मौजूद है और इसे निगल गया। इसे दोबारा थोक दो। वो ठीक था, हिलाया। इसकी शायद अभी थेरापी हो रही है, लेकिन ऐसा हुआ और आप इसे खुद देख सकते हैं। इसलिए जोना इसे बीलेन वहेल ने नहीं निगल लिया था, बल्कि शायद एक हम्प बैक स्प्रम वहेल ने निगल लिया था, जिसमें वो है। वो हकीकत में सक्वेड खाते हैं जो जानते हैं कि शायद ये नहीं हुआ होगा। एक वहेल खुदा ने एक मछली तैयार की। ये कुछ भी हो सकता था और वो, लेकिन वो कब तक वहां था? आप यूनस के बाब अव्वल में पढ़ते हैं, ये कहता है, और यूनस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में था। मसीह के मसाइब की एक किस्म। यसू ने कहा कि इस नस्ल को कोई निशान नहीं दिया जाएगा, लेकिन यूनस मैथ्यू बाब 12 की निशानी है, जबकि यूनस 3 दिन और 3 रातें बड़ी मछली के पेट में थी। तो इब्न आदम 3 दिन और 3 रातें जमीन के दिल में रहेगा। जमीन का दिल मसीह के इन मसाइब को बयान कर रहा है जो जुमेरात की रात कब्र में शुरू हुए थे। यसू ने जुमेरात की रात, जुमा की रात, हफ्ता की रात के आखिरी खाने के बाद हमारे गुनाहों के लिए तकलीफ उठाना शुरू की। वो इतवार की सुबह उठा। आमीन। सो यूनस 3 दिन 3 रातें। वो इसे हमेशा के लिए पुकारता है। अब जानते हैं कि यसू ने जिस तरह से खोए हुए दुख उठाए हैं, ये एक अबदियत की तरह महसूस होता है। क्या आप 3 दिन और 3 रातें अंधेरे में समुद्री इफरीत में रहने का तसव्वुर कर सकते हैं? हो सकता है कि वहेल ने दोपहर के खाने में जेली फिश खाई हो और फिर आप अंधेरे में इस सारी सुश के साथ वहां मौजूद हों। क्या आप कर सकते हैं? ऐसा लगता था कि हमेशा के लिए
आमीन। आप में से कितने लोगों ने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है? तुमने कहा यार, मैंने हमेशा के लिए नहीं खाया, मैंने उन्हें हमेशा के लिए नहीं देखा है। इसलिए अब सियाक व सबाक को देखते हैं। जब खुदा ने हमसे अबदी जिंदगी का वदा किया है, हम सियाक व सबाक से जानते हैं कि ये लामुत्तनाही है, क्योंकि बहुत से दूसरे हवाले हैं। ये एक और है, हिना अपने बेटे को मंदिर में ले कर आई और कहती है कि अगर आप मुझे लड़का दें तो मैं इसे आका के पास ले आऊंगी ताकि वो मंदिर में हमेशा के लिए रब की खिदमत करे। अच्छा किया, इसने अपना वदा पूरा किया। क्या समोल है, कल मैं गया था, इसने कितनी देर खिदमत की, इस की बाकी जिंदगी जब तक कि वो मर गया, हमेशा हमेशा के लिए। जब वो मर गया, जब तक कि इब्रानियों का एक कानून था कि अगर आपके पास कोई नौकर है तो 7 साल के बाद आप अपने इब्रानी खादिम को आजाद कर सकते है। लेकिन अगर आपका इब्रानी खादिम कहे, अब जानते हैं मुझे आपकी खिदमत करना पसंद है, मैं आपका खादिम रहना चाहता हूं, वो एक रस्म से गुजरेगा और ये कहता है कि वो हमेशा आपका खादिम रहेगा। इसका क्या मतलब था कि वो मर जाए? ठीक है, तो जब ये आग की झेल में शरीरों के तबाह होने की बात कर रहा है तो इसकी वजह यह है कि दिन और रात यह है कि शैतान शायद दिन रात जलता रहता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिरकार शैतान भी जलकर पड़ा जाता है। हज़क़ल 28 ये कहता है कि तुम अब हमेशा के लिए कभी नहीं रहोगे, वो इसे तबाह करने वाला है, तुम अब नहीं रहोगे। जिस तरह से ये हकीकत में पड़ता है वो खत्म हो गया है। नंबर 12, मैं बहुत दूर छलांग लगा चुका हूं, क्या रूह और जिस्म दोनों तबाह हो गए हैं, जहन्नम अब ये एक है। आपको ये सुनना होगा कि दोस्त लोग अच्छी तरह सोचते हैं, हाँ पादरी, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस्म जल जाता है लेकिन रूह हमेशा के लिए तड़पती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ये इतना वाज़ेह है कि हमारी रूह और जिस्म दोनों जहन्नम में तबाह हो गए। मसीह ने मैथ्यू बाब 10 आयत 28 में कहा है कि जो लोग जिस्म को मारते हैं उनसे मत डरो, लेकिन वो रूह को नहीं मार सकते, बल्कि इससे डरो, यानी खुदा से डरो जो रूह और जिस्म को तबाह करने पर कादिर है। जहन्नम में कितना तबाह हुआ। यसू ने क्या कहा? रूह और जिस्म तुम चले गए, याद रखो, इसने कहा तुम गुनाह करो, मरो, मुझ पर यकीन करो, तुम हलाक ना हो, तुम जिंदा रहो, तुम्हें सजा मिलेगी। हर एक को इसके मुताबिक सजा दी जाती है जिसका वो मुस्तहिक है। क्या आप जानते हैं कि इनाम की मुख्तलिफ मिकदारें हैं? कभी कभी यसू ने कहा कि अगर आपको इंसाफ की खातिर सताया जा रहा हो तो जन्नत में आपका अजर अजीम है। और यसू ने हुदाह के बारे में कहा कि इस आदमी के लिए बेहतर होता अगर वो पैदा ना होता। तो आप कैसा पसंद करते? फैसले में हुदाह बने और जानते हो कि अपने यसू को धोखा दिया। हिटलर हो या पूल पाट तारीख के, इन गासिबों में से कुछ इनाम के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। मैं न सिर्फ जन्नत में जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो आपके इनाम के तौर पर बहुत अच्छा कहे। आमीन। अब में से कुछ सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ वहां पहुंचना चाहता हूं, अब में से कुछ सोच रहे हैं कि मैं कितना गुनाह कर सकता हूं और फिर भी वहां पहुंच सकता हूं। गलत रवैया। अब देखना चाहते हैं कि अब किनारे से कितना दूर हो सकते हैं। आमीन। जिनके लिए जहन्नम की आग जलाई गई है, जैसा कि हज़क़ल में एक और आयत है, ये कहती है कि जो रूह गुनाह करेगी वो मर जाएगी। ये लुगत की तारीफ की तरह है। सिर्फ जिस्म ही नहीं, रूह के गुनाह मरेंगे। जहन्नम की आग किसके लिए जलाई जाएगी? मैथ्यू 25:41 रवाना हो जाओ, मुझसे रुखसत हो जाओ, तुम अबदी आग में लानत भेजते हो, किसके लिए तैयार? शैतान। जहन्नम आपके लिए डिजाइन नहीं किया गया है। अगर आप जहन्नम में जाएंगे तो इसकी वजह यह है कि अपने गलत रहनुमा की पैरवी की। शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार अच्छे फरिश्ते हैं और बुरे फरिश्ते हैं जो हमेशा की जंजीरों में रखे हुए हैं। नंबर 14, बाइबल खुदा की तरफ से शरीरों की तबाही का हवाला कैसे देती है? बाइबल हमें बताती है कि रब नाराज होगा कि वो अपने काम को इसका जबरदस्त काम करे और उसके गैर मामूली अमल को अंजाम देकर खुदा मोहब्बत और तख्लीक और जिंदगी और बरकत और भलाई का देवता है। इसे कुछ दुख नहीं चाहिए। यहां कौन किसी चीज को दुख देखना चाहता है? मैंने आपको बरसों पहले बताया था, मैं पहाड़ों में एक गार में रहता था और मैं 1.5 साल तक एक परहेजगार था। वहीं मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कभी पीछे नहीं हटना। मेरे गार में एक बली थी, वो अभी दिखाई दी एक दिन उन पहाड़ों में ऊपर। मैंने इसे अजनबी कहा क्योंकि अभी जाहिर हुआ है और हम बहुत करीब हो गए। और सर्दियों की रात बहुत अच्छी लगती थी। जब सर्दी होती थी वो शिकार करके आता था और रात को अपने पंजे से मेरे चेहरे पर धकेल देता था और मैं अपना स्लीपिंग बैग उठा लेता था। वो मेरे पैरों से मेरे स्लीपिंग बैग के नीचे जाता था और वो वहां मेरे कदमों पर गिरता था और ये बहुत अच्छा था।
लेकिन कभी कभी मैं इसे शिकार करते हुए देखता था कि वो गार में चूहों को पकड़ता है। और मुझे याद है कि मैं एक दिन रात का खाना बना रहा था और मैंने देखा कि एक छोटा सा कैंगरू चूहा अंधेरे में आदेर अलिफादेर आदेर अलिफादेर उछलता हुआ देखा, और अजनबी ने इसे देखा और अजनबी ने चूहे पर झपटा और उसने इसे पकड़ लिया। अब जानते हैं कि बिल्लियां थोड़ी उदास होती हैं, इसलिए वो जन्नत में नहीं जाती। तो अब कुत्ता, अगर कुत्ते ने चूहा पकड़ लिया तो ये अच्छा था, वो हो चुका है। ये सिर्फ एक बलि है नहीं, वो अपने खाने से खेलना चाहता है और उसके पास वो छोटा चूहा था और इसने इसे अपने मुंह में पकड़ा हुआ था और उसने इसे अपने पास लाया और उसने मुझे दिखाया और उसने इसे जाने दिया। और ये जो चीज कांप रही है वो तुम जानते हो, भागने की कोशिश करता है और वो दोबारा इस पर झपटता है और उसने थोड़ी देर उसके साथ खेला और वो चीज बिल्कुल बेतरतीब हो गई थी और जब तक वो कर सकता था इसे खेलना चाहता था और उसने इसे छोड़ दिया और कैंगरू चूहा अंदर चला गया। इसकी कूदने की कोशिश मेरी आग में फंस गई। आपको सुने, मैंने अभी एक चूहे के लिए हमदर्दी की इज्तिमाई आह सुनी है। तुमने इस शहर में चूहे बहुत रखे हैं, तुम जानते हो कि तुम चूहे को जलता नहीं देखना चाहते थे, लेकिन मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने वो देखा और सोचा ओ नहीं, और बेचारी छोटी सी चीज छलांग लगा दी। मैं कुछ नहीं कर सका, वो आग के दहकते हुए कोयलों में कूद गया और वो सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए चीखता और झुलसता रहा, लेकिन यह खौफनाक था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चूहे का जल न देखें, कौन किसी चीज का दुख देखना चाहता है? क्या आप खुदा से ज्यादा प्यारे हैं? क्या आप खुदा से ज्यादा मेहरबान हैं? जब खुदा बदकारों को सजा देता है तो आपको लगता है कि वो इसे देखने के लिए नेक लोगों के पास पाप कारण दे रहा है और इसलिए इसमें कोई खुशी है कि इससे इसका दिल टूट जाता है। खुदा नहीं चाहता कि हम हलाक हों, वो बहुत शिद्दत से चाहता है कि आपको बचाया जाए। इसने अपने बेटे को दे दिया, लेकिन बाइबल बिल्कुल वाज़ेह है कि तकदीर क्या है। अल्फाज सुने, शरीर का क्या होने वाला है। वो खा गए, वो फना हो गए, वो मर गए, वो अब नहीं रहे, वो दूसरी मौत, वो तबाह हो गए। ये वो इस्तिलाहात हैं जो बाइबल इस्तेमाल करती है। अंग्रेजी ज़ुबान में इब्रानी यूनानी में कोई लफ्ज़ नहीं है, वो खुदा इस्तेमाल कर सकता है जो ज्यादा हो सकता है वजाहत करने के लिए कती गुनाह दोबारा नहीं उठेगा दूसरी बार। खुदा गुनहगारों को अमर करने वाला नहीं है, गुनहगारों के पास लाफानी खुदा नहीं है। बाइबल कहती है और खुदा के पास सिर्फ लाफानी है। आमीन। तो ये ख्याल के गुनहगार लाफानी हैं और वो हमेशा के लिए जल जाएंगे अफसानों से आता है, और चर्च अक्सर उसका इस्तेमाल लोगों को जोड़ तोड़ और खौफजदा करने के लिए करता है और पैसे हासिल करके उनसे वो काम करवाता है जो वो करना चाहते थे। लेकिन हमारा माबूद रहमत और मोहब्बत का देवता है गुनाह, और गुनाहगार फना होने के बाद हमें क्या इंतजार करना पड़ेगा? फिर भी हम उसके वादे के मुताबिक नए आसमान की तलाश करते हैं और क्या एक नई जमीन जिसमें रास्तबाजी रहती है। यह हमें बताता है कि तमाम चीजें नई होने वाली हैं। मुकाशिफा XXI आयत 4 बाइबल कहती है कि खुदा उनकी आंखों से हर आंसू पूंछ देगा और कोई मौत नहीं होगी। कितनी मौत? अब रोना नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ये कहो। आप सब इसे स्क्रीन पर देखें। मजीद दर्द नहीं होगा। कितने दर्द होंगे? मजीद दर्द नहीं। खुदा गुनहगारों को अमर करने वाला नहीं है। खुदा बर्रामान में किसी जगह हमेशा हमेशा के लिए टार्चर चैम्बर बंद करने वाला नहीं है। और अब ये कहने जा रहे हैं कि मुझे वाकई अफसोस है कि मेरा शौहर मेरा खानदान मेरा एक बच्चा वहां जल रहा है हमेशा और हमेशा। लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं है। अब जानते हैं क्योंकि खुदा ने मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस किया है। नहीं, ये शरीरों को सजा मिलने के बाद कहता है। वो पहुंचता है हमारी आंखों से आंसू। एक वक्त होता है 1000 साल के बाद जब हम शरीरों का फैसला देखने जा रहे हैं और हमें खुदा की तरह फितरी प्यार मिलेगा। ये दिल दहला देने वाला होगा, लेकिन फिर भगवान ले जाने वाला है। अब कहेंगे कि मैं कैसे भूल सकता हूं। खुदा हमारी आंखों से सारे आंसू पूंछ देगा। दोस्तों आमीन। अब मजीद कोई तकलीफ दुख नहीं, गुनाह का मसला फिर कभी उठेगा। नहुम 1:9 मुसीबत दूसरी बार नहीं उठेगी जब मैं एक नया आसमान और नई जमीन बनाऊंगा। साबिका को हमेशा के लिए याद नहीं रखा जाएगा। दोस्तों से डरने के लिए कभी कुछ नहीं होगा। 2 इंतखाब आपके पास जिंदगी है मौत। जिंदगी का इंतखाब करें। बाइबल कहती है जो भी इसे जिंदगी का पानी आजादाना तौर पर लेने देगा। आप में से कितने लोग कहते हैं कि अब जिंदगी का पानी चाहते हैं?
नौकरी की किताब में लिखा है कि क्या कोई इंसान खुदा से ज्यादा नेक हो सकता है। अगर खुदा अपनी मखलूक के साथ ऐसा नहीं करता, अगर हम ये करना चाहते हैं तो खुदा क्यों करेगा। आप अभी ये फैसला करना चाहते हैं और हम कल रात अब से मिलने के मुंतजिर हैं। हम खुदा की मोहब्बत के बारे में बात करने जा रहे हैं। आओ और अलिफाला की रूह और ताकत के बारे में सुनो। आपको मुबारक हो दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात कब है? कल रात अपने दोस्तों को लेकर आना। ये एक जिंदगी बदलने वाली पेशकश होने जा रही है, जिसका मैं वादा करता हूँ और आपको बरकत मिलेगी। क्या मैं बंद होने से पहले आपके साथ नमाज पढ़ सकता हूँ?